Okay. So very good evening to all of you. Hello, everyone. So in this lecture, we are going to discuss the comparative paper discussion of this comparative paper, which is about to schedule after the few days. So the first question of the comparative paper is state the law represented by the following proposition and prove it with the help of truth table. Okay. This is basically the 1 mark questions. I was writing the more question, but the time start मतलब मुझे क्लास स्टार्ट करनी थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया, तो मैंने उसके आपको स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, तो हम स्क्रीनशॉट से पेपर को डिस्कस करेंगे. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस लॉ. सो दिस इज बेसिकली ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है. इसमें आपको दो चीजें करनी है. एक तो आपको इसका लॉ का नाम बताना, यू हैव टू टेल द नेम ऑफ लॉ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव बाय द ट्रुथ टेबल. So this is basically the commutative law. All right, commutative law. Commutative law means A plus B is equal to B plus A. मतलब A plus B can be written like that, B plus A. One more variation is there, but it is not asked in the examination, but I am telling you. This is also a commutative law. Now we have to prove it by the truth table. It's very simple. Just a moment, please. Comparative paper I am discussing. Latest comparative paper I am discussing. Just a moment, please. 1 second. People are still joining. Okay. Now, how many variables are involved in the expression? You can see that there are 2 variables are involved. Just for a second, please. One second, please. See, A plus B is equal to B plus A. Means 2 variables are involved, so we have to prepare the truth table of the 2 variable. A, B. Okay, here we can write A plus B and B plus A. Please make yourself mute. 1 minute. Okay. Just for a second, please. 2 variables are there. So the total combinations will be 2 to the power 2 is equal to 4. 0, 0, 1, 1. Just 1 second. 0, 1, 0, 1. Understand? Okay. Now A plus B. It's a simple addition operations. So 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 1. And here B plus A, so A plus B or B plus A, the same output will come. So 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 1 plus 0, 1, and 1 plus 1. Now you can see that the truth values of this column and the truth values of this column is absolutely same. So it is proved by truth table. Okay. 80% this question definitely will ask in examination, means you have to prove some expression equivalent to another expression with the help of truth table. Okay, so my first question is done and prove it with the help of truth table, and we have already proved. This is basically the proof, understand? So you have to write down this much as an answer. So this question is done. Now what about the next question? Okay, just 1 second. Next question we will see from the screenshot. Okay. Hope it is visible to everyone. Just a moment, please. Now, in the first question number first B, show that this expression is a tautology or not. Now, what is tautology? If, second, please. What is tautology? All the one. Yes. Very good. Actually, I want to clear the few things related to this. What is TAU or tautology? If in the truth column you are getting
all 1 means it is tautology. Now after that, what is contradiction? Contradiction. Do you have any idea what is contradiction? If in the truth table all are zeros. Just a moment, I just copy this part, pasting. Okay. See. Here I was writing somewhere. Okay, now this is my sheet actually. So what is contradiction? If in the truth table, in a truth column, you are getting all zeros. अगर आपको फाइनल, सबकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब में तो आपके जीरोस भी होंगे और 1 भी होंगे, जो फाइनल जिसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन कॉलम, रिजल्टेंट कॉलम, अगर उसमें आपके सारे 1 आ रहे हैं तो दैट मींस इट इज टॉटोलॉजी, जस्ट फॉर अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू. And if all our zeros are there, that means it is a contradiction. And one more thing is there, contingencies. What is contingencies? If in the resultant truth column, you are getting a combination of 0 and 1. मतलब few are 0 and few are 1. So this is called contingencies. If all are 0, that is contradiction. If all are 1, that is called a tautology. So according to the question, we have to check whether this complete expression is a tautology or not. Okay. So for that, what we have to do, we have to make the truth table of this expression. And before that, I want to discuss one more thing. 1 second, please. Okay. So you know that what are and or operator. Okay. But another form of and or operator is 1 minute. Conjunctive and disjunctive means, just a moment, please. A plus B, all are aware. But it is also equal to, in a modern algebra, in a modern Boolean algebra, it can be written like that. This is called disjunctive. Okay. Now A dot B can be written like that. A conjunctive, the sign of conjunctive, जो ट्रुथ वैल्यूज इसकी आएंगी वही ट्रुथ वैल्यूज इसकी आएंगी. जो ट्रुथ वैल्यूज इसकी आएंगी, the same truth value you will get on the A conjunctive B. Now what about this? According to the traditional Boolean algebra, this is A complement. But in the modern Boolean algebra, the complement is indicated by the tilde sign. This is called the tilde sign. Okay. And in other words, it is called a negation of A. This is called a negation of A. Suppose something is written like that, AB whole complement, just for revision because some new students are watching this online and taking this online class, and AB. All right. Now it's fine. Done. तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए, then we can come to the topic. See, okay. See, X, this sign is disjunctive sign, negation, Y, conjunctive X. हमें प्रूफ करना है कि ये टॉटोलॉजी है या नहीं. अभी कुछ देर पहले, बिफोर 1 minute, I have discussed about the resultant column. So this complete expression will be treated as resultant column.
I will show you one second. Okay, X, Y, and Z. There are three variables are involved. So just a moment. Here I want to prove X and Y. Only X and Y is there. Okay, because it's a 1 marks question. Actually, a lot of screens are there. No problem. X and Y. Done. This is called the base variable. इनको हम लोग ट्रुथ टेबल में बेस वेरिएबल्स कहते हैं क्योंकि आगे की जो फर्दर प्रोसीडिंग एक्सप्रेशंस हैं वो इन्हीं से ड्राइव होती हैं, इन्हीं से बनती हैं. ओके, अब हम देखते हैं वी हैव टू राइट डाउन द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ओके, y conjective x is there. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं. ओके, y conjective x, तो y conjective. Okay, just a moment please. Actually this sign, 1 minute. Y one minute please have some patience. Y and x. Okay, y and x. Just 1 second please. 1 second please. This sign I have to take from the, actually the sign is not available in the Excel. One second please. So hope you are understanding the problem. And this is the whole complement. One minute please. And the final expression is x and the whole complement. X y and x. This is y and x. This is y and x. And x or y. Okay. Now give me only 1 second. Just 1 second, please. X, Y. Okay. Now I got the sign. This is Y and X. And this is also Y and X, but the whole complement. Whole complement. So one tilde sign will be there. Okay, so I was discussing the another way without truth table. Okay, if the expression is less, so you can apply this method, but if the expression is lengthy, means 4 variables are involved, then the preferred method is truth table creation. Okay, not exactly. The second method is 1. So this question I'm discussing. So 1, 0, 0, 1 is the binary of 1. What about the 5,
101, then 7. Okay, understand? Okay, now after that आप लोग जीरोस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसमें? किसमें करते हैं? मिन टर्म में. तो आपको यहां पे मिन टर्म लिखना है. Am I audible to all of you? Can you please confirm? Yes, sir. Okay, okay, fine. So this is, अब हमें इसका मिन टर्म लिखना है. So x bar y bar z will be the min term of this. अब इसका अगर हम मिन टर्म लिखेंगे तो x y bar z, इस मेथड के लिए आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बिल्कुल टिप पे होना चाहिए. अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा भी गलत कन्वर्ट कर लिया देन डेफिनेटली द एक्सप्रेशन विल बी चेंज्ड. अब इन सबको, ये जो सारे आइसोलेटेड टर्म्स हैं, इनको आप प्लस के साथ जोड़ दीजिए. आपका वही आंसर आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला है. x बार y बार z, x y बार z, x bar y bar z, x y bar z, and the last one is x y z. So this is actually a second way, second method of doing the same thing. Okay, but again I am telling this is the preferred method. Okay, understand? The second method is understand to all of you. Can you please confirm? Yes, sir. एक्सपर्ट स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास वेरियस मेथड्स, वेरियस वे हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, एक दो नहीं. तो हम आपको हर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं. सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर. ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है. इसकी शीट हम आपको सेपरेटली, आई विल सर्कुलेट द शीट सेपरेटली. यहां पर हम थोड़ा सा बस एक टच कर रहे हैं इसको, इस टॉपिक को. तो टच करने के लिए अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करें, एक्सेस स्पेसिफायर जावा में सबसे secured, powerful, private. The second is protected. Protected. The third one is default. The fourth one is public. Default को हम लोग no modifier भी कहते हैं. Okay. Private का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन या कोई मेथड प्राइवेट है, इफ एनी फंक्शन और डेटा मेंबर इज प्राइवेट एंड डिफाइंड इनसाइड एनी क्लास, सो ओनली इन दैट क्लास इट कैन be accessed, not outside the class. This is the definition of private data member or private functions. Okay, now what about the protected? Okay, this is basically private and I'm going to discuss the protected. Protected means it will be accessible in the same class, in the same class, in the same class, in the subclass, okay, in the non subclass of the same package, in the subclass of another package, but not in the non-subclass of different package. I'm very much sure कि ये लाइन आपकी समझ में नहीं आई होगी. That I know. इसके लिए अभी सिर्फ आंसर देने के लिए हमने इतना लिखा है. इसके लिए हम एक प्रॉपर चार्ट क्रिएट करेंगे. आई विल कवर दिस पॉइंट इन अ वेरी सून सेपरेट.
डिफॉल्ट के बारे में हम थोड़ा सा लिख देते हैं, सबसे ज्यादा जो समझना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो प्रोटेक्टेड को होता है, ठीक है। डिफॉल्ट मॉडिफायर मतलब इट कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन द सेम पैकेज बट नॉट इन द डिफरेंट, राइट। सेम पैकेज में से कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा पैकेज होगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, हम इसके लिए प्रॉपर चार्ट बनाएंगे, डोंट वरी। पब्लिक बहुत ही सिंपल लीनियंट एक्सेस मॉडिफायर, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर either inside the class or outside the class, either inside the same package or inside the different। सिर्फ आपके पेपर के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने इतना लिखा है। अगर आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसकी एक पूरी शीट दूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊं, क्योंकि हमें आगे की तरफ प्रोसीड करना है। हम बूलियन पार्ट आज कवर करना चाह रहे हैं। नाउ दिस इज डन। Convert the following SOP expression into PS expression. Another very important question. Very important question. ये आपको समझना है, इसे हम डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले एक ये जिस पर हम मार्क कर रहे हैं और एक ये जिस पर हम मार्क कर रहे हैं। These two combinations are very important. ये कॉम्बिनेशंस हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। नंबर्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोसीजर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। अब हमें ये देखना है, जैसा आप जानते हैं कि ये 2 मार्क्स का है तो थोड़ा तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा ही। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, एसओपी में गिवन है क्योंकि सिग्मा इज देयर, और इसे कन्वर्ट करना है पीएस में, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी। ओके, मैं अभी समझाता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले आपको XYZ की ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल पे पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, तो ट्रुथ टेबल के लिए आई थिंक XYZ ट्रुथ टेबल इज ऑलरेडी देयर, ये है, ठीक है। अब यहां पर है तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, नो फिल, और ये भी हम यहां से रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो XYZ ट्रुथ टेबल इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बनी हुई है। ओके, अब यहां पर ये कुछ पोजीशंस दी गई हैं, तो जो ये पोजीशंस दी गई हैं वो पोजीशन बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट की है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लीज फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। ये जो पोजीशन दी गई है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की पोजीशन है, मिन टर्म की पोजीशंस हैं। तो पहले हम इन पोजीशंस को मार्क कर लेते हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ऑल राइट। सो 2 कुछ एक डिफरेंट कलर से हम इनको मार्क कर लेते हैं, 2, the third, 2 3 5 and 7। अंडरस्टैंड? ये जो पोजीशंस हमने मार्क करी हैं, स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूं, ये पोजीशन बेसिकली जो मार्क्ड पोजीशंस हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ऑल द मार्क्ड positions are SOP positions. All the marked positions are called the SOP. ये सारी जो हैं, जस्ट मोमेंट प्लीज, ये जो मार्क पोजीशंस हैं वो आपकी SOP की हैं। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर, मैं आराम से इसको समझा रहा हूं, ठीक है। इंटेंशनली आई एम टेकिंग टाइम। ओके, नाउ अब हम वापस इसमें आते हैं। इसमें ये पोजीशन तो हमने मार्क कर ली बिकॉज दीज आर द पोजीशन ऑफ द एसओपी। यू हैव टू कन्वर्ट द एसओपी इनटू पीएस। तो जो बची हुई पोजीशंस हैं उन पर आपको पीएस लिख देना है, जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उन पर आपको पीएस लिखना है। तो व्हाट आर द रिमेनिंग पोजीशंस? जिनको आपने मार्क नहीं किया वो सब आपकी रिमेनिंग पोजीशंस हैं। तो इन पर आपको अंडरस्टैंड, कीप दिस थिंग इन माइंड, जो बची हुई पोजीशन है, रिमेनिंग पोजीशन, उनको आप पे पीओएस लिखना है, नॉट एसओपी, पीओएस।
You have to convert the SOP into PS, so you have to write down the PS. तो PS लिखने के लिए हम क्या करेंगे? PS लिखने में हमको याद करिए कि हमको 1 को 0 बनाना होता है. They are already 0. So x plus y plus z. Of course, the plus sign will be there. Now what about this? इस पे कैसे लिखेंगे PS? x plus y plus y plus z complement. साथ इससे आपका रिवीजन होता है, हेजिटेशन ब्रेक होता है, समझ में आता है. तो x plus y, no sorry, x bar plus y plus z. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पे क्या करेंगे हम? What we have to write? So x complement plus y complement plus z. Good. Understand? Now, final expression तो आपको लिखनी ही है, ये रूल है. This is a very important rule कि आपको after writing this आपको final expression लिखनी होती है. तो final expression के लिए हम इसको थोड़ा मर्ज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं. Okay? तो x plus y plus z. We can keep this in a bracket. Okay? थोड़ा टाइम लग रहा है बट क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं. x plus y plus z bar dot x bar plus y plus z dot x bar plus y bar plus z. अब दो चीजें यहां पर आपको समझनी है. टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. The resultant expression is in the form of canonical product of sum. Canonical भी है, product of sum भी है. तो इस तरह से हम लोग SOP को PS में कन्वर्ट करते हैं. हम यहीं पर रिवर्स प्रोसेस भी देख सकते हैं. We can see the reverse process here. What is the reverse process? Suppose हमें क्वेश्चन में given होता, क्योंकि we have to check the question from all the perspective. तो यहां पर एक चीज हम देख लेते हैं. हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमको PS के फॉर्म में दी हो और हमसे कहा जाए कि आपको SOP के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेटर ऑन तो हम इसे देखेंगे ही, लेकिन हम यहीं पे देख लेते हैं. ठीक है, तो हम जो पोजीशन दी गई है उनको हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे. जो बची हुई पोजीशन है उन पर हम SOP लिख देंगे. नो प्रॉब्लम. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज ऑलमोस्ट वी हैव डन. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ. जब भी बात कॉम्प्लीमेंट की आती है हमेशा आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड. कॉम्प्लीमेंट कैन ओनली बी रिजॉल्व्ड बाय डैश, बाय De Morgan. By De Morgan. Very important person is there, De Morgan. And the complement can only be resolved by the De Morgan. तो इस पूरी एक्सप्रेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. नो प्रॉब्लम, करेंगे. ठीक है, तो पहले इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं. तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम लोग इधर आ जाते हैं. ये भी हमारा एक प्लेटफॉर्म है. ओके, जस्ट मोमेंट प्लीज. कंट्रोल प्लस टेल. 1 second. All right. Now see, the expression is x bar dot y. Another important question I am discussing, plus x bar dot. आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरी शीट शेयर की जा चुकी है. अगर आपको देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं. बार बार स्क्रीन को स्विच करने में टाइम थोड़ा लग रहा है. ये एक्सप्रेशन हमें दी गई है. अब इस एक्सप्रेशन का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट. सो नो प्रॉब्लम इज देयर. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जस्ट इसके ऊपर एक बार हमें लगा देना है. तो ये हो गया होल कॉम्प्लीमेंट. अब हम इसको सेंटर पॉइंट मान लेते हैं. इसको हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं.
तो सेंटर पॉइंट अगर हम इसको मान लें, तो अगर हम इसके ऊपर डिमॉर्गन अप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा? x बार y होल बार, दिस प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट x बार डॉट y प्लस z होल बार, क्योंकि हमने डिमॉर्गन से इसको ब्रेक किया है, सो दिस प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू डॉट। ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, ये पोर्शन राइट हैंड साइड पे हो गया। तो जब तक होल कॉम्प्लीमेंट है तब तक डिमॉर्गन हमें हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर अगर हम डिमॉर्गन अप्लाई करें तो क्या आउटपुट आएगा? कैन यू प्लीज टेल? ये लिख सकते हैं? ओके। अगर इसके ऊपर हम डिमॉर्गन अप्लाई करें तो ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, तो ये हो जाएगा x डबल बार प्लस y डॉट z, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, होल बार स्टिल। अंडरस्टैंड? ठीक है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज देयर, another very important person is there, involution. So bar to bar will be cancelled. Dot x plus, अब क्या हम इसको ये लिख सकते हैं भैया? This is called the ground reality. अब ये जो ग्राउंड पे आपका आंसर आ रहा है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको एक चीज का ध्यान रखना कि इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जब तक आपका कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व है तब तक आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसका एक शॉर्ट हैंड मेथड भी है, देखो, क्रॉस चेकिंग मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट हैंड मेथड क्या है? मान लो इस एक्सप्रेशन का हमको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है उस पर से कॉम्प्लीमेंट हटा दो। जो डॉट है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो। ओके 1 मिनट। जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा है उस पर से कॉम्प्लीमेंट हटा दो, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दो। y पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा है तो लगा दो, प्लस को कन्वर्ट कर दो डॉट में। जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा है यू हैव टू रिमूव, कॉम्प्लीमेंट्स रिमूव करना है जिस पे कॉम्प्लीमेंट है ऑलरेडी, एंड दिस डॉट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लस। Now y पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो you have to put the complement. This plus will be converted into dot. Just I am doing the reverse. Z पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो you have to just put a complement. Now you can see that this expression is exactly equal to this expression. Understand? तो कहीं पर अगर आपको लगे डाउट हो सकता है हम एग्जाम में आपके साथ ना हो, तो कहीं पर अगर आपको डाउट हो कि ये आंसर सही है या गलत है, तो इमीडिएटली दिस इज अ क्रॉस चेकिंग मेथड। बट यू नो दैट द 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो हम ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इतना करने के बाद ही ये आपको क्रॉस चेकिंग प्रोसीजर मैंने बता दिया। अंडरस्टैंड? आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज 2 सेट्स वी हैव डिस्कस्ड। तो मींस 5 6 7 8 9 10 marks questions today we have discussed. In the next upcoming lecture we will continue this paper. Okay, do you want to ask any question? Sir. Yes. Sir, एग्जाम में स्पेसिफिकली ऐसे पूछ सकते हैं कि इसको डिमॉर्गन लॉ से प्रूव करके? नहीं, डिमॉर्गन लॉ आपका डिसीजन है, वही आपको अप्लाई करना है, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट विदाउट डिमॉर्गन लॉ के नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। सर अगर ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे ना पूरे? ये लिख दें, अगर ये हाँ सर, बात कर रहे हैं ब्लू की। मैंने आपको बताया कि आपको इस तरह से रिड्यूस करते हुए लिखना है, ये आपका प्रोसीजर है लेफ्ट हैंड साइड का।
इतना आपको लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैंने बताया कि दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, क्रॉस चेकिंग मेथड है। ओके, आपको इस तरह से लिखना है, रेड वाला, अंडरस्टैंड? क्योंकि 2 मार्क्स में आपको कुछ स्टेटमेंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. I will upload this lecture. Understand? All the lectures will be uploaded. Now there are 16 to 17 lectures are there, only related to the Boolean algebra, and programming lectures are also. The channel name is Anis Sir's Technology. अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है? तो आपको मेरे अपलोड करने के बाद इमीडिएटली यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अंडरस्टैंड? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो 1-2 मिनट में हम डिस्कस कर सकते हैं, 1-2 मिनट के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू पोस्ट योर क्वेरीज बाय द चैट, इमीडिएटली आई रिस्पॉन्ड। हम इमीडिएटली आपकी क्वेरीज पर रिस्पॉन्ड करते हैं।